today in data protection, we are going to learn about solutions of data protection. So the entire computer security is based on a system of actions and safeguards that are designed to protect a computer system from deliberate or accidental access or damage by various threats. Data protection solutions are categorized as active protection and preventive measures. Let us see them one by one. So first is solutions to viruses, adware and spyware. So first we have active protection. Use antivirus and anti-spyware software in which you can scan all your systems for viruses. Disconnect any infected systems immediately from your network if there is a virus. Restore the infected systems from a clean backup. Notify your antivirus vendor to update database of virus signatures. Normally, antivirus companies, they do this last step automatically. It means जितने भी नए नए वायरसेस मार्केट में आते हैं उन सब के फिंगरप्रिंट्स वो अपने डेटाबेस में ऐड करते चले जाते हैं. This is called updation. So you need to update your antivirus on regular basis. Now there are two more solutions. Download updates regularly and run full system scans frequently. Normally हर दूसरे तीसरे दिन आपको पूरा कंप्यूटर स्कैन करते रहना चाहिए. Next, preventive measures. Keep your system up to date. So these are preventions. Keep your system up to date. As you know, malware often takes advantage of security holes in operating systems and software programs. So you should always install latest updates for Windows whenever available. Use caution while downloading files on the internet. This is very important. Only download the files from reputable websites by looking for privacy statements, contact information, SSL encryption of sensitive information indicated by a padlock in the web browser. Whenever you start a browser और कोई आपने वेबसाइट ओपन करी तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ एक छोटा सा लॉक दिखाई देगा आपको. You can click there to find out whether that website is reputable or not. And here SSL stands for secure socket layers. Next point is be careful with emails. Do not download or open untrusted email attachments. Very important. Be aware of phishing scams that we have already discussed. Check for security alerts. Disable running of scripts and cookies regularly on the browser. Disconnect from internet after work is done. नॉर्मली हम अपने मोबाइल को लैपटॉप को ऐसे ही छोड़ देते हैं. इंटरनेट हमेशा ऑन रहता है बिकॉज इट इज फ्री, बहुत सारा डेटा मिल रहा है, बट यू शुड नॉट डू लाइक दैट. डिसेबल कुकीज इफ पॉसिबल. अगर आपको लगता है कि कुकीज दे आर हार्मिंग यू, डिसेबल देम. नेक्स्ट वी हैव सॉल्यूशन टू स्पैम एंड ईव्सड्रॉपिंग. सो लेट अस सी व्हाट इज इन एक्टिव प्रोटेक्शन. एक्टिव प्रोटेक्शन में आपका पहला है यूज एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर. नाम से ही पता लग रहा है ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पैमिंग को रोके. यूज एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर. इट यूजेस टू मेथड्स टू गेट रिड ऑफ स्पैम्स. फर्स्ट इज सेंडर फिल्टरिंग.
and second is keyword filtering. Let us see them one by one. Sender filtering. It allows only messages from approved sender list. यानी कि सेंडर जो लिस्ट अप्रूव करेगा वहीं से ही मैसेजेस आपके पास आएंगे, बाकी सारे मैसेजेस क्वारंटाइन कर दिए जाएंगे. All other mails are quarantined. Sender filtering is done on the basis of digital certificates and digital signatures. Now let us see what are these. The digital certificates, these are specially formatted digital information issued to websites. And these are used to verify the identity of a message sender. These are issued by certificate authority that is trusted by both sender and recipient. Digital signatures, नाम से पता लग रहा है, signatures which are not actually on paper. These are in digital form. These are a way of authenticating the identity of creators or producers of digital information. It is like a handwritten signature and can have the same legal authority in case like buying, selling online or signing legal contracts. Next is keyword filtering. Keyword का मतलब आजकल आप लोग जानते हैं what are keywords. Keywords are those special words which are used for searching etc. Normally आपने जैसे लिखा volcano search में तो volcano is a keyword. या आपने लिखा hacking, hacking is a keyword. So this method filters out email messages that contain certain keywords or phrases which are defined by you or others. Suppose आपने keywords की एक list बना करके भेज दी कि इससे रिलेटेड ईमेल मैसेजेस अब आपके पास नहीं आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट वांट ईमेल मैसेजेस रिलेटेड टू गेम्स, तो आप गेम से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे नाम मेंशन कर सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड ईमेल्स फिल्टर आउट हो जाएंगे. Now solution to spam and eavesdropping, वही सेम चल रहा है. अब है प्रिवेंटिव मेजर्स. कीप योर ईमेल एड्रेस प्राइवेट. हर किसी को ईमेल आईडीज बांटते मत रहो. जिसको चाहिए, जिसको जरूरत है उसी को ईमेल आईडीज देनी चाहिए. डू नॉट शेयर इट टू एनीबडी, ओनली द ट्रस्टेड वंस. ऑलवेज check for encrypted connection. Encrypted connections are made possible through protocols like Hypertext Transfer Protocol, Secure, HTTPS. अगर HTTP लिखा हुआ आ रहा है किसी वेबसाइट में, डू नॉट ओपन इट, वो सिक्योर नहीं है. लास्ट में S होना जरूरी है. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है. S should be there. And secure shell and offer better security. तो अगर ऐसे प्रोटोकॉल्स कहीं पर यूज हो रहे हैं, इट मींस दैट वेबसाइट इज सिक्योर्ड. Next point is install firewall on your computer so that you can keep a check on incoming and outgoing data. डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ आप भेजना चाहते हैं, सारी चीजें फायरवॉल के थ्रू होकर के जाएंगी. We will see details of firewall later on today on itself. Last point, always avoid conducting online transactions or using online banking services on public networks. ये ध्यान रखना, पब्लिक नेटवर्क्स आप यूज मत किया करो. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं मॉल में गए और वहां पे आपको लगा कि इंटरनेट फ्री है and you start doing online banking etc. Please avoid this. Same part, solutions चल रहे हैं. Now this is solution to PC intrusion. Let us see active protection. In active protection, we have basically two things: authentication and authorization. यूजर नेम पासवर्ड पूछना, उसके बाद ये ऑथराइज करना कि वो
जो यूजर है ऑथेंटिकेट हो चुका है उसको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है. So all these come in authentication and authorization. So let us see these steps one by one. In authentication process, the identity of users are checked for providing the access to the system. While in authorization process, persons or users authorities are checked for accessing the resources. Second point, in authentication process, users or persons are verified, while in this process, users or persons are validated. It means they are validated to use some of the facilities or features. Fourth, it needs usually user login details, जैसे username और password, whereas it needs users privilege और security levels. Privilege जैसे किसी को privilege दे दी गई थी, किसी पर्टिकुलर फाइल को रीड कर सकता है, उसमें चेंजेस भी कर सकता है या चेंजेस नहीं कर सकता, एक्सेट्रा. Fifth point, authentication determines whether the person is user or not, whereas in authorization it determines what permission do users have, कि वो क्या क्या कर सकते. There is one more important point, firewall हमेशा एग्जाम में आता है. This is also a solution to PC intrusion. ये आप एक जो इमेज देख रहे हैं, this is a firewall hardware device. फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. ओनली सॉफ्टवेयर कैन आल्सो बी देयर एंड ऑब्वियसली देयर इज अ हार्डवेयर फायरवॉल आल्सो, एज यू कैन सी. Okay, a firewall is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. A firewall typically establishes a barrier between a trusted network and untrusted network, such as internet. You cannot trust anything on internet, so internet comes in untrusted network. Firewalls can be implemented in two forms. Software firewall. A software firewall is a program which is installed on each computer which is on network and regulates traffic through port numbers and applications. For example, even my laptop is having software firewall. या तो अलग से आप फायरवॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, अदरवाइज जो आजकल टोटल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आते हैं दे ऑलरेडी हैव फायरवॉल्स. इफ यू डू नॉट हैव एनी सिक्योरिटी सिस्टम, in that case also Windows has its own firewall. तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल तो हमेशा अवेलेबल होगा, बट बेटर इज द लाइसेंस्ड वन जिसको आप परचेज करते हैं. Second point is hardware firewall or a physical firewall. It is a piece of equipment installed between your network and gateway. ये नॉर्मली जहाँ बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स काम करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, वहां पर हार्डवेयर इंस्टॉल होता है. एक सिंगल यूजर के लिए हम हार्डवेयर फायरवॉल नहीं लगाते. नेक्स्ट, सोल्यूशन टू पीसी इंट्रूजन कंटिन्यूड. इसमें अब हम देखते हैं व्हाट आर प्रिवेंटिव मेजर्स. प्रिवेंशन क्या क्या रखने हैं. यूज प्रॉपर फाइल एक्सेस परमिशंस व्हेन शेयरिंग फाइल्स ऑन इंटरनेट. नॉर्मली इस चीज का कोई ध्यान नहीं देता है, बस फाइल शेयर कर दी हो गया, बट वी मस्ट use proper file access permissions. So we have three types of permissions. If a user has read permission for a file, इसका मतलब जब आप किसी को फाइल भेज रहे हैं तो वैसे तो वो उस फाइल के साथ सब कुछ कर सकता है, बट इफ अ यूजर हैज रीड परमिशन फॉर अ फाइल, जिसने भेजा है उसने अगर रीड परमिशन लगा रखी है तो जिसके पास वही फाइल जाएगी वो सिर्फ उसको देख सकता है, रीड कर सकता है. If a user has write permission for a file, he can edit and write into that file. It means he can make changes also.
Third, if a user has execute permission for a file, he can execute that file. Execute का मतलब होता है रन कराना. अब ये परमिशंस वगैरह कैसे देते हैं, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. फिर किसी दिन मैं आपको बता दूंगा हाउ वी कैन डू ऑल दिस. आप एक काम कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू गिव अ हिंट. आप किसी भी फाइल माई कंप्यूटर में जाइए, माई डॉक्यूमेंट्स में जाइए, किसी भी फाइल जिसको परमिशन आप देना चाहते हैं, जिसमें चेंजेस करना चाहते हैं, फाइल पर, फाइल के नाम पर राइट क्लिक करिए एंड गो टू प्रॉपर्टीज. वहां आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा रीड परमिशन, राइट परमिशन, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज फाइल परमिशंस. दीज आर गिवन फॉर 3 सेट ऑफ यूजर्स. 3 तरह के यूजर्स होते हैं. ओनर, जिसकी वो फाइल है. ग्रुप, अगर वो फाइल किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए तैयार की गई है. एंड अदर्स. डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट आफ्टर यूज. ये तो पहले भी पॉइंट आपने देखा था. सो ऑल दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स. नाउ लेट अस सी सॉल्यूशन टू फिशिंग एंड फार्मिंग. तो इसमें भी देखते हैं एक्टिव प्रोटेक्शन और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं. एक्टिव प्रोटेक्शन. डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट एज सून एज पॉसिबल इफ यू फील लाइक अ विक्टिम. इसका मतलब अगर आपको लगा कि आपने गलती से किसी डुप्लीकेट वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत डाल दी है, और इफ यू फील लाइक अ विक्टिम, देन डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट. सेकंड, बैकअप ऑल फाइल्स ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव. एक हार्ड डिस्क ले लीजिए, पोर्टेबल हार्ड डिस्क आती है, उसके अंदर सारी फाइल्स का बैकअप ले लीजिए, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स है. लिस्ट द इंफॉर्मेशन गिवन टू फिशिंग स्कैमर्स. जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है, आधी या पूरी, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड और एनी अदर सिक्योरिटी कोड, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, वो सब लिख करके रख लो. देन रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. बैकअप ऑलरेडी है आपके पास, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो उसको आप स्कैन करेगा पूरा. इट विल टेक होल लॉट ऑफ टाइम. एंड देन इमीडिएटली रिपोर्ट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट टू कंसर्न एजेंसीज. पुलिस में, गवर्नमेंट को, या जो भी कंसर्न एजेंसीज है उनको तुरंत आप रिपोर्ट करिए कि ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ है और आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है. बट डू नॉट डू दिस ऑनलाइन. ऑनलाइन तो वैसे ही खतरा था ना अभी, तो दोबारा से फिर ऑनलाइन करेंगे तो इट मीन्स फिर से आप फिशिंग के चक्कर में फंस सकते हो. नेक्स्ट वी हैव प्रिवेंटिव मेजर्स. डू नॉट ओपन ईमेल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज. चेक द सिक्योरिटी गाइडलाइंस ऑफ वेबसाइट्स, जैसे पीछे बताया था. पैडलॉक पे क्लिक करिए, वहां पता लग जाता है सिक्योर्ड है कि नहीं है. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली क्लिकिंग अ लिंक, राइट द यूआरएल इन द ब्राउजर मैनुअली. नॉर्मली व्हाट्सएप पे भी क्या होता है, लिंक शेयर कर दिए जाते हैं. लिंक भेज दिया, बस क्लिक किया, अपने आप ओपन हो जाना चाहिए. बट यू शुड नॉट डू दिस. क्या करना चाहिए, उस लिंक में जो यूआरएल लिखा हुआ है वो मैनुअली आप टाइप करिए, और पूरा यूआरएल मत लिखो. फॉर एग्जाम्पल www.abc.com, उसके आगे बहुत लंबी लाइन है, कुछ कोड्स लिखे हुए हैं. डू नॉट राइट दिस. वो सारा मत लिखो, abc.com तक लिख करके छोड़ दो. ब्राउजर मस्ट ओपन समथिंग, तो उसको देख करके आपको लगेगा कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है. ओके, व्हेन इन डाउट नेवर क्लिक. तो दीज आर 4 पॉइंट्स. नॉर्मली एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं ये क्वेश्चंस. तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, यू मस्ट लर्न ऑन दीज. इनमें से मान लो 2 नंबर का कोई क्वेश्चन, तो 4 पॉइंट आपको लिख करके आने. एंड फायरवॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी टाइम फायरवॉल कम्स इन एग्जाम. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. छोटा सा चैप्टर था, 3 लेक्चर में कवर अप हो गया. आई विल अपलोड लास्ट 3 वीडियोस and will share the link to you. मेरा लिंक सेफ होगा, ठीक है, डू नॉट वरी एट ऑल. एंड